Hi students, this is Ishtiaq Shafi. I'm from Electrical Engineering Department, and today we will discuss power systems. So if you will see that we receive the electricity in our homes, and you will be fascinating that how this electricity reaches to our homes. What are the various types of situations during the course of the electricity which is coming from the generating power plants to the load centers. But before we'll go to that, first and foremost, we will discuss what exactly is this power system. If we will broadly classify, power system consists of four major subdivisions, and these divisions are: first, it consists of generation; second, it consists of transmission; third, it consists of distribution; and fourth, it consists of load centers. Now we will discuss these four subdivisions of power system. So if we want to define this power system can be defined as the electricity, how it is generated electricity, and then how this electricity reaches to the load centers. So it consists of generation, it consists of transmission, it consists of distribution, and it consists of load centers. So power system consists of four major players, that is generation, transmission, distribution, and load centers. Now if you will move to the generation, as you know, if you will see in India, most of the generation is from the thermal power plants. As we know that we have got different types of power plants, conventional power plants in India. We have got, number one, we have got thermal power plants. Thermal power plants, PP. Then next we have got hydroelectric power plants. Then third, we have got nuclear power plants. Then fourth, we have got diesel power plants. Fifth, we have got gas turbines. So these are the major players where we get the generation of electricity. So this is thermal power plants, hydroelectric power plant, nuclear power plant, diesel power plant, and gas turbines. And you will be astonished to listen this, that thermal power plant, the major contribution of this thermal power plant is near about, now thermal power plants, they have got the major contribution of 80% of electricity. What does mean this 80% of electricity? इसका मतलब है जो हमारे पास घरों में electricity पहुंचती है, the major contributor across India is 80%. It is not this hydroelectric power plant. Even though if you will see in Kashmir that the major power plant which supplies the electricity to the load centers is the hydroelectric power plant in Kashmir. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वहां पे thermal power plant is a major contributor. It contributes how much? It contributes 80% of the electricity to the load centers. Then we have the hydroelectric power plant, nuclear power plant, diesel power plant, and gas turbines. I will quickly go these generating power plants. If you will see, the underlying principle of these five power plants is same. That is Faraday's laws of electromagnetic induction. What exactly it says? It says whenever there is a change in magnetic field, that change in magnetic field induces an EMF in the closed circuit. अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर वो चेंज कर रहा है, if it is changing, then that change in magnetic field will induce an EMF in the closed circuit. तो यही बेसिक फिनोमेना हम रख रहे हैं थर्मल में भी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक में भी, न्यूक्लियर में भी, डीजल में भी, एंड गैस टर्बाइन में भी. अगर हम थर्मल की बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, थर्मल पावर प्लांट्स में हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग स्टीम बॉयलर्स. And what exactly we are doing? We are having dry steam of high temperature and high pressure, and that dry steam having high temperature and high pressure is being used to run the turbine. It gives the turbine the kinetic energy. और आपको पता है, if you will see here,
जो हमारे पास एक, इफ दिस इज द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, अगर यहां से हम बनाएंगे, and then this shaft is coupled or connected with the shaft of the synchronous generator. This is turbine and this is generator. And और जो इसकी रोटेशन होगी, अब ये रोटेट कैसे करेगा, यहां पे मेरे पास जो गैस आएगा, what exactly, अब इस गैस में क्या है, it has got high temperature and it has got high pressure. दिस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अब ये करता क्या है, ये इन टर्बाइन के ब्लेड्स को हीट करता है. व्हेन इट हिट्स, और यूजुअली इट हैज बीन सीन दैट द रोटेशन ऑफ दिस टर्बाइन इज नियर अबाउट 2000 to 3000 आरपीएम. अब इसकी जो रोटेशन है, इट इज हाउ मच, 2000 to 3000 आरपीएम. अब जब इसको ये रोटेट कराएगा टर्बाइन को, यू नो दैट दिस हैज बीन कपल्ड और कनेक्टेड विद द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर. और जिस रोटेशन से ये टर्बाइन रोटेट करेगा, उसी रोटेशन से आपका जनरेटर का जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगा. एंड व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, इट विल चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. इफ यू विल सी, we have got the synchronous generators. Synchronous generators are those type of generators which have got the same rotation of the rotor and same rotation of the rotating magnetic field. That is, we have got here, if you will see here, जो हमारे पास synchronous यहाँ पे generator है, I want to give a little bit concept of that. Okay, if you will see synchronous generators here, synchronous generators, we have got the shaft or rotor, and then we have the magnetic fields here. North south, and this is the shaft. और ये shaft हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, ये हमने कनेक्ट किया है with the shaft of the turbine. This is being connected with the shaft of the turbine, and whenever this rotates, जब ये रोटेट करता है, यहां पे आपको पता है that there are magnetic field of lines, right? And ये जो यहाँ पे magnetic field of lines है, they get changed by the rotation of this shaft, which is being rotated by what? This is being rotated by the shaft of the turbine, और which in turn ये किससे रोटेट हो जाता है? It can be rotated by the, जो मैंने यहां पे बताया, दैट इज विद स्टीम, राइट? और इसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर, जो इसको रोटेट कराता है. Whenever this rotates, it changes the magnetic field. Whenever it changes the magnetic field, that change in magnetic field induces an EMF. And ये कैसे induce करता है EMF? And this is by Faraday's laws of electromagnetic induction. It is the underlying principle. Faraday's laws of electromagnetic induction is the underlying principle of all the power plants here. So you can see how important this law is. It says that whenever there is a change in magnetic field, that change in magnetic field will induce an EMF. And here you can see, by the rotation of the shaft, it changes the magnetic field, and that change in magnetic field will produce an induced EMF. So you can see we have got here, just for the sake of representation here, we have got three phases here, R, Y, B, right? And this is the induced EMF, and we take it outside, and then this is being supplied to the consumers. Now coming to the hydroelectric power plant, यहाँ पे मैंने बताया that we are using the gas, the heat energy of the gas and the pressure energy of the gas is being used to have the kinetic energy on the turbines. But how we can have if the induced EMF here, that is RYB. Now if you will see here, this is the underlying principle of all the power plants here. Now we have got the another power plant, that is hydroelectric power plant. Now in hydroelectric power plant, what we are doing, if you will see, we are increasing. अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर मेरे पास रिवर है फॉर एग्जाम्पल,
right? And it is flowing in this direction. What I am doing, I am stopping this river. मैं यहाँ पे कंक्रीट करता हूँ. What will happen? Do you think that the river will stop? No, it will not stop. It will continue to flow. And what will happen? ये इसका river का जो head है, इसका वो increase हो जाएगा. And whenever the head of the river will get increased, what exactly will happen? इसका जो potential energy है, the water molecule का जो potential energy है, वो potential energy increase हो जाएगा. आपने पढ़ा है in physics, अगर हम कोई भी मटेरियल को if we will just raise it above the ground, what will happen? इसकी जो potential energy वो increase हो जाएगी, right? अब वो increase क्या हो जाएगी? Depends on how much height it is having above the ground. अब हम यही करते हैं जब हम इसको रोकते हैं रिवर को, इसका जो हेड है, हेड मीन्स हाइट, हाउ मच इट इज अबव द ग्राउंड, वो इंक्रीज हो जाता है. एंड इफ आई विल से देयर आर नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. एंड what is potential energy? Potential energy is defined as that type of energy which is by virtue of its position. It is not by virtue of it is moving, by virtue of it is position. अब ये जो इसकी पोजीशन है, मैंने इसकी जो हाइट है, मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेज हो गई. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अलाउइंग दिस पार्टिकल नाउ टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नीचे में इसको लाता हूं. व्हाट विल हैपन? जब आपने पढ़ा है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाएंगे, इसके पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? नाउ व्हेन आई विल अलाउ दिस ऑब्जेक्ट टू फॉल, During the process of falling, इसकी जो potential energy है, that potential energy will get changed into kinetic energy, right? And kinetic energy की formula क्या है? That is 1/2 of mv square. And when this object will hit the ground, what will happen? At that time वहाँ पे क्या हो जाएगा? It will hit with the maximum velocity. Same principle is with the hydroelectric power plant. वहाँ पे क्या करते हैं हम? If you will see, हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक डैम बनाते हैं, राइट? एंड देयर इज अ पेनस्टॉक. और यहां पे हम क्या करते हैं? नीचे रखते हैं हम टर्बाइन को. इफ आई विल जस्ट रिमूव दिस वन, यहां पे हम पेनस्टॉक लाते हैं. पेनस्टॉक और एक्चुअली द स्टील पाइप्स हैविंग डायमीटर्स ऑफ 3 to 5 meters. एंड यहां से जो आपका पानी है वो यहां से आ जाता है. और यहां पे हमने क्या लगाया है? दिस टर्बाइन और इसके ब्लेड्स है, राइट? और यहां से हम नोजल लगाते हैं. एंड दीज जो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये इस टर्बाइन को के जो इसके ब्लेड्स है, वो उन ब्लेड्स को क्या करते हैं? इट हिट्स दीज ब्लेड्स एंड व्हाट विल हैपन? इट विल रोटेट. अब ये जो यहां पे टर्बाइन है, ये किसके साथ हमने कनेक्ट किया है? इट हैज बीन कनेक्टेड विद द shaft of the generator. This is the basic phenomena or basic formula is same. Whenever there is a change in magnetic field, that change in magnetic field will induce an EMF. और यहां पे आपको एक induce 3 phases में R, Y, B, right? In this case also. Similar, if you will go back, similar is the case with nuclear power plants. अब यहां पे क्या कर रहे थे हम? थर्मल पावर प्लांट्स में हम स्टीम को प्रोड्यूस करते थे, बट हाउ वी विल प्रोड्यूस स्टीम? वहां पे क्या होते थे? देयर आर बिग बॉयलर्स ऑफ वेरी लार्ज डायमीटर्स, एंड वहां पे हम उसको पानी रखते हैं और उसको हम क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस कोल वी यूज टू गेट द स्टीम. अब यहां पे सेम फॉर्मूला है in nuclear power plants. We are not using here coal, but what we are using here nuclear fission process. आपको पता है what is nuclear fission process? You have seen that there are radioactive materials like uranium, polonium, barium, krypton. We are using uranium 92-235. 92 is the atomic number and 235 is the atomic mass. आपने पढ़ा है आइसोटोप्स फिजिक्स में, that isotopes are those atomic molecules which are having same atomic number but different atomic mass. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है, हम क्या करते हैं? हम एक न्यूट्रॉन को इस जो हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम को हिट कराते हैं. इफ आई विल जस्ट सी क्विकली, यहाँ पे क्या है? एक न्यूट्रॉन, इसको हम कहां से हिट कराते हैं? 235, राइट? इसके न्यूक्लियस को ही हिट कराता है. एंड व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स. एंड व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी.
and this energy is used to produce what? To produce the steam. ये एनर्जी हमें यूज कहां पे करते हैं? पानी को उबालने के लिए, so that it will produce the steam. Now you will be surprised to listen. अगर मेरे पास 50,000 किलो जूल्स हीट जरूरत है to produce near about 100 megawatts of energy. 50,000 किलो जूल्स, कितना एनर्जी मुझे रिक्वायरमेंट है? 50,000 किलो जूल्स. एंड ये मुझे कहां से आएगी? बाय बर्निंग 1000 टन्स ऑफ कोल, राइट? आपको 1000 टन्स ऑफ कोल चाहिए टू प्रोड्यूस 50,000 ऑफ जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड देन इट विल प्रोड्यूस द स्टीम, एंड देन इट विल प्रोड्यूस 100 megawatts ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी जस्ट नीड few milligrams of uranium. जो मेरे पास यहां पे यूरेनियम मटेरियल है, you'll be surprised only few milligrams. कहां पे? यहां पे 1000 टन्स, आपको 1000 टन्स में कोल चाहिए, और कहां पे आपको चाहिए? सिर्फ few milligrams. So you can few milligrams of uranium to produce same amount of this kilojoules of heat. Heat will be produced to the same amount. यहां पे 1000 टन्स ऑफ कोल को जलाने से मुझे मिल रहे 50,000 kilojoules ऑफ हीट, और यहां पे few milligrams ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर फिशन की वजह से मुझे इतनी हीट मिल रही है. सो द प्रोसेस इज सेम. सो यू कैन सी, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसके भी कुछ वी विल गो इन डिटेल इन फ्यूचर कोर्स ऑफ लेक्चर्स. इन डिटेल इसमें देखेंगे कि इसमें एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. डीजल पावर प्लांट पे हम यूज क्या करते हैं? आपको पता है हमें प्राइम मूवर को रोटेट करना है. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज सेम. तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं. आपको पता है इंजन का आउटपुट क्या है? इंजन का आउटपुट होता है मैकेनिकल रोटेशन, एंड दैट रोटेशन जो पार्ट है, इट इज बीइंग कपल्ड विद द जो यहां पे जनरेटर के साथ है, और जनरेटर से वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है. एंड गैस टर्बाइंस दे आर सेम एज अ थर्मल पावर प्लांट. यहां पे क्या, हम यहां पे हम गैस टर्बाइंस में कोल नहीं यूज करते, वहां पे हमें रेडिली अवेलेबल होती है गैस, आई मीन टू से स्टीम. गैस टर्बाइंस में हम स्टीम यूज करते हैं, सेम अंडरलाइंग प्रिंसिपल, लेकिन वहां पे हम कोल नहीं यूज करते हैं या फिशन प्रोसेस नहीं यूज करते. वहां पे हमें रेडिली अवेलेबल दैट ड्राई स्टीम होती है, हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. अब यहां पे जो गैस टर्बाइंस है, दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल पावर प्लांट. जब भी कहीं पे कंटिजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई, आपके पास बैकअप पावर सप्लाई होना चाहिए. इनकी जो कैपेसिटी होती है, इफ यू विल सी डीजल पावर प्लांट्स एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स, इनकी जो आउटपुट कैपेसिटी है दैट इज 5 megawatt, up to 5 megawatt. और यूजुअली हम यूज नहीं करते इनको कब हम यूज करेंगे? जब आपके जो मेन पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनमें कुछ फॉल्ट आ गया. सो एट दैट टाइम व्हाट आवर कस्टमर्स शुड बी ऑलवेज हैप्पी. हु आर आवर कस्टमर्स? आवर कस्टमर्स आर आवर रेजिडेंशियल लोड्स, कमर्शियल लोड्स, इरिगेशन लोड्स, सो इंडस्ट्रियल लोड्स. सो देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस पावर सप्लाई. सो इन ऑर्डर टू हैव दैट कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दीज डीजल पावर प्लांट्स. 4-5 घंटे के लिए हम यूज करेंगे, या गैस को यूज करेंगे 5-6 घंटे के लिए, सो दैट इन द मीन टाइम वी विल बी रेक्टिफाइंग दीज पावर प्लांट्स जिनको कुछ फॉल्ट आ गया था. नाउ इफ यू विल मूव, यहां पे एक और पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशन में. अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, इफ यू विल मूव, ये जो यहां पे मैंने दिखाया, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? देयर आर लाइक 6.6 kV, 11 kV. In certain cases it can be 33 kV. So how much is the voltage? This is the induced EMF. We call this as a generating voltage. We call this what? As a generating voltage. Now there is another voltage known as transmission voltage. So you should, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन इन वाइवा, इवन इन इंटरव्यू. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द जनरेटिंग वोल्टेज एंड द ट्रांसमिशन वोल्टेज? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस. जो यहाँ पे जनरेटिंग वोल्टेज है, दैट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा. अगर मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है, मेरे पास पावर है 100 मेगावाट. दिस इज एन एक्टिव पावर. ये मुझे कहां पे ट्रांसमिट करना है? टू द लोड सेंटर्स, आपके कंज्यूमर्स, राइट? अब जब मैं इसको यहां पे लाऊंगा कंज्यूमर्स, अगर मेरी अब ये जो 100 मेगावाट्स है, मैंने अगर इसको ट्रांसमिट किया 11 kV पे, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी लॉसेस इन दिस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाई अमाउंट ऑफ लॉसेस. द लॉसेस कैन बी एज मच एज 50 megawatts.
अब यहां पे 100 माइनस 50 कितना हो गया? 100 माइनस 50 इज हाउ मच? 50 मेगावाट। तो आपकी जो जनरेशन थी दैट वाज 100 मेगावाट, बट आपका कंजम्पशन कितना है? 50 मेगावाट। सो हाउ मच वाज द लॉस इन बिटवीन? 50 मेगावाट का लॉस आ गया, एंड दैट लॉस इज आई स्क्वायर आर लॉस, जिसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और इन केस ऑफ एसी वी कैन से आई स्क्वायर जेड लॉस, इंपीडेंस। एज यू नो, इन जब भी हमारे पास डीसी होता है, जो अपोजिशन इट इज इन रेजिस्टेंस, एंड जब एसी की बात करेंगे द अपोजिशन इज इन इंपीडेंस। जो एसी में हम देखेंगे आई स्क्वायर जेड जो लॉसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर इन लॉसेस को फिर हम कैसे कम करेंगे? हमारा तो जनरेशन है 100 मेगावाट है, और हमारा जो कंज्यूमर्स तक पावर, जो एक्टिव पावर पहुंच रहा है दैट इज ओनली 50 मेगावाट्स, और इसमें इन बिटवीन लॉस कितना हो रहा है? 50 मेगावाट्स। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस ऑकरिंग इन ट्रांसमिशन एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। What we are doing? We are using step up transformers in the generating power plants, and जो वो वहां से वोल्टेज निकलेगी that is known as generating voltage. If I will just show it here, if I will just show it here, जो मेरी जनरेटिंग वोल्टेज है 11 kV। अब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, देयर इज अ फॉर्मूला इन ट्रांसफार्मर P इज इक्वल टू VI। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट एक्चुअली डज, जो हमारा पावर है इट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज, आई विल एंड दिस लेक्चर विद दिस पॉइंट, जो हमारा पावर है इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस जो मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगी इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट विल हैपन टू द करंट? करंट डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये जो V एंड I है दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। एंड सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको पावर को कांस्टेंट रखना है। अगर V मुझे इंक्रीज हो गया तो उसी फैक्टर से जो मेरा I है ये भी डिक्रीज होना चाहिए, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स दैट इज वोल्टेज एंड करंट इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं टू सर्टेन लेवल नोन एज ट्रांसमिशन वोल्टेज, करंट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। और आपको पता है जो लॉसेस यहां पे हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? आई स्क्वायर जेड। आपको पता है Z इज द पैरामीटर विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। एल्युमिनियम क्या है? कॉपर। इट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज दिस Z पैरामीटर हियर। अब यहां पे क्या, जब आपने I को डिक्रीज किया, जब आप I को डिक्रीज करोगे तो आपका आई स्क्वायर पार्ट भी डिक्रीज हो गया। जब आपका आई स्क्वायर पार्ट भी डिक्रीज, आपके ओवरऑल जो लॉसेस है, लॉसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज टू सर्टेन लेवल्स लाइक 132 kV, 220 kV, 300, 400, it can go up to 1200 kV. In the next lecture, inshallah, we will discuss that what are the various transmission voltages and can we go beyond 1200 kV also? What is the limiting factor for that? I hope if you have any questions also, you can put in the message box which is available in the YouTube, and we will be having discussions on that also. So I hope that it was a very useful and exciting lecture for you, and I will see you in the next lecture inshallah. Bye bye, take care.